لاہور میں داتا دربار کے قریب سیویج لائن میں گرنے والی خاتون کی لاش تقریباً 3 کلومیٹر دور آؤٹ فال روٹ سے مل گئی۔ 9 ماہ کی بچی ردا کی تلاش جاری۔ متاثرہ فیملی شورکوٹ سے سیر کرنے لاہور آئی تھی۔ مینار پاکستان کے بعد داتا دربار پہنچی تھی۔ اس دوران خاتون بچی سمیت سیویج لائن کی منڈھیر پر بیٹھی، جہاں سے دونوں نیچے گر گئیں۔ ریسکیو ٹیمز چند منٹ میں موقع پر پہنچ گئیں۔ 5 گھنٹے سے زائد وقت کے بعد 24 برس کی سعدیہ کو تلاش کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایڈیشنل چیف سیکریٹری کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ 24 گھنٹے میں رپورٹ دے گی۔ غفلت اور کوتاہی کے الزام میں پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس اور ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر احمد معطل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین کو معطل کر دیا گیا۔ واسا حکام کو ریلیف آپریشن تیز کرنے کے احکامات۔ لاہور میں ماں بیٹی کے سیویج ہول میں گرنے کی اطلاع شوہر نے دی تھی۔ تلاش ختم ہونے سے پہلے ہی موقع پر موجود انتظامیہ نے ڈوبنے کی اطلاع فیک قرار دینے کی رپورٹ میڈیا کو جاری کر دی تھی۔ ریسکیو ذرائع نے دعویٰ ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ کہا تھا اس ہول میں کسی انسان کا ڈوبنا تکنیکی طور پر ہی ممکن نہیں۔ لاہور انتظامیہ کا بھی کہنا تھا کہ سیویج لائن کا معائنہ کر لیا، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش میں شوہر کا بیوی کے ساتھ تنازع اور سنگین الزامات کی رپورٹ جاری کی۔ شک کی بنیاد پر شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں بھی لیا، تاہم بعد میں کہا کہ کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 4 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی کپتان سلمان علی آغا اور آسٹریلوی قائد مچل مارش نے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کی۔ پاکستان ٹیم کی میچ سے ایک روز قبل بھرپور تیاری۔ بابر اعظم، ساحل فرحان اور سائم ایوب سمیت بیٹرز نے نیٹ میں بھرپور وقت گزارا۔ بولرز بھی خوب ردم میں دکھائی دی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد موسم شدید سرد۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور زیارت سمیت بلوچستان کے بالائی اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج۔ زمینی رابطے منقطع۔ استور میں برف باری کے باعث بند رابطہ سڑکیں اب تک بحال نہ ہو سکیں۔ سوات کے بالائی علاقوں میں بند رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام بھی جاری۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات لگانے کے کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کیس کی سماعت 10 فروری تک ملتوی۔ NCCIA نے سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف مقدمہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ سہیل آفریدی کا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 8 فروری کے احتجاج کو روکنے کی کوشش ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی PTI کو اسپتال لانے اور پھر جیل لے جانے کی خبر آئی ہے۔ اس خبر سے فیملی اور پارٹی میں تشویش ہے۔ آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کس بیماری کی وجہ سے لایا گیا۔ بانی سے آخری ملاقات 20 دسمبر کو ہوئی تھی۔ پٹیشن کے باوجود ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی PTI سے ذاتی معالج اور فیملی کو ملنے دیا جائے۔ ان کے ذاتی معالج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا بانی PTI کو اسپتال لے جانے کی خبر کی تصدیق یا تردید سے انکار۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا اس معاملے پر سنسنی پھیلانے کے بجائے انتظار کیا جائے۔ حکومت تصدیق یا تردید کرے گی۔ اگر یہ خبر درست ثابت ہو گئی تو یہ اس بات کی تصدیق ہوگی کہ بانی PTI کو صحت کے جو بھی سہولتیں دینی ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ بانی PTI کی صحت اور زندگی کے حوالے سے افواہوں میں کوئی صداقت نہیں۔ انہیں باقی تمام قیدیوں سے زیادہ اور بہتر سہولیات دی جا رہی ہیں۔ PTI کے پاس اڈیالہ جیل کے باہر تھیٹر لگانے کے سوا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ نہیں لگتا کہ جیل حکام ملاقات کی اجازت دیں گے۔
फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात की इंक्वायरी शुरू। ज़राए के मुताबिक नजफ हमीद से मुताल्लिक़ तमाम मुतल्लक़ा इदारों से तफसीलात तलब। इंक्वायरी FIA एंटी करप्शन सेल ने शुरू की। नजफ हमीद की गिरफ्तारी के लिए FIA के छापे। नजफ हमीद का नाम PINL में भी शामिल। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब। इस्लामाबाद की मातहत अदालत से नजफ हमीद की अराजी स्कैंडल में अबूरी जमानत मनसूख हुई थी। बसंत एक रिवायती त्यौहार है, लेकिन इसे फेस्टिवल बनाने का सहरा मारूफ शख्सियत मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के सर जाता है। तकरीबन 2 दहाइयों बाद होने वाली बसंत पर यूसुफ सलाहुद्दीन ने एक बसंती नगमा लिखा है जो धूम मचाने को तैयार है। इस गीत की कॉम्पोजिशन भी वो खुद ही दे रहे हैं, जबकि गुलकारा फादिया शबरोस आवाज़ का जादू जगा रही हैं। इस्लामाबाद में पाक चाइना माइनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, CPEC 2.0 पाकिस्तान के कौमी और माशी तब्दीली के फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल हम आहंग है। मकसद 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत तश्कील देना है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरानी फोर्सेस किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी मुआहिदे का खैर मकदम किया है। ऐसा जौहरी मुआहिदा जिसमें जौहरी हथियार ना हो और जो ईरान के हुकूक को यकीनी बनाए। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर अली शामखानी का कहना है कि अमरीका ने हमला किया तो जवाब में अमरीका, इसराइल और उनके हिमायतियों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका की तरफ से महदूद हमले की बात एक फरेब है। अमरीकी हमले का ईरानी रद्द-ए-अमल फौरी, मुकम्मल और मिसाली होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी हुकूमत मुमकिना तौर पर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अमरीकी सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में बात करते हुए रूबियो का कहना था कि ईरान की मईशत ज़वाल का शिकार है। मुस्तक़बिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू होंगे। ईरान के हालिया मुज़ाहिरों में यकीनी तौर पर हज़ारों अफराद हलाक हुए थे। अमरीका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की ज़िंदगी पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म अमरीका और बरतानिया के बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही बुरी तरह पिट गई। $75 मिलियन की लागत से बनाई गई दस्तावेज़ी फिल्म कल रिलीज़ की जा रही है, मगर न्यूयॉर्क और लंदन के अक्सर सिनेमा घरों में रिलीज़ के रोज़ का लोगों ने एक भी टिकट नहीं लिया या इक्का दुक्का सीट बुक की है। सोशल मीडिया पर सार्फिन खाली सिनेमा घरों की तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। दस्तावेज़ी फिल्म सदर ट्रंप की हल्फ बर्दारी से 20 रोज़ पहले की कहानी है। दावा किया जा रहा है कि खातून अव्वल ने इस फिल्म में किरदार पर $28 मिलियन लिए हैं। मिड टर्म इलेक्शन से पहले दस्तावेज़ी फिल्म नाकाम हो गई। कई सार्फिन के नज़दीक सदर ट्रंप के लिए नेक शुगुन नहीं। बलूचिस्तान के जिला दुकी के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में चोरी की अनोखी वारदात। चोर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के माल खाने की खिड़की तोड़कर 233 किलो अफीम और 37 किलो चर्स चुरा कर फरार हो गए। चोरी की गई मनशियात मुख्तलिफ केसेस में पकड़ी गई थी। पुलिस ने मनशियात चोरी का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। कराची के गुल प्लाजा में 79 जिंदगियां निगल जाने वाली आग। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों लगी। फूलों की दुकान में लगी आग एयर कंडीशन के डक्ट की तरफ से तेजी से फैली। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर इत्तला मिलने के 11 मिनट के अंदर आग लगने के मकाम पर पहुंचा। इब्तदाई रिपोर्ट मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात की रोशनी में तैयार की गई, जो वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। सानह गुल प्लाजा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरखास्त। कहा कमीशन बनाया जाए ताकि वाकई में मुमकिन लापरवाही या कानूनी खिलाफ वर्जियाँ तलाश की जा सकें। जुडिशल इंक्वायरी से न सिर्फ एहतसाब बल्कि आइंदा ऐसे वाक़यात रोके जा सकेंगे। MQM ने सानह गुल प्लाजा पर हुकूमत सिंध की पेश करदा रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान MQM ने कहा, इतने बड़े सानहे का जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना मुज़ाहिका खेज है।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का गुल प्लाजा सानहे की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, गुल प्लाजा की खौफनाक आग को बच्चे से जोड़कर सिंध हुकूमत और मेयर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। हाई कोर्ट की जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 1 फरवरी को शारा फैसल पर जीने दो कराची मार्च मुनक्किद किया जाएगा। कराची के इलाके लांढी भैंस कॉलोनी में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लड़की के वालिद ने की और फरार हो गया। एक शहरी जख्मी हुआ। लड़का लड़की ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। ताल्लुक ठट्टा से था। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची सब्जी मंडी नदरन बाईपास पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से 2 राहगीर जाँ बहक। जौहर मोड़ के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जख्मी, गाड़ी में मौजूद मर्द व खातून फरार। बलूचिस्तान तुर्बत के इलाके में गाड़ी में सवार मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से कार में सवार 2 अफराद हलाक। धमाका खेज मवाद असलहा बरामद। एसपी केज के मुताबिक मशकूक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की गई। मुल्जिमान ने रुकने के बजाय पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान होने वाले तजारती माहिदे पर वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि इस हवाले से वजीर आज़म की सदारत में एक हंगामी इजलास हुआ है। हमें ये बात यकीनी बनानी है कि पाकिस्तानी बरामदात को हासिल GSP प्लस का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहे। इस हवाले से वजीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून के दफातर को फ़ाल रहने की हिदायत की है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, बरामदात का शोबा मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। हमें एक्सपोर्टर्स की मदद करनी है। बहुत जल्द इस हवाले से अच्छी खबर आएगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए रुपए की कदर में कमी करने का ये बेहतरीन मुनासिब वक्त है। K4 मंसूबे पर 66% काम मुकम्मल हो गया। मंसूबा दिसंबर 2026 में मुकम्मल कर देंगे। 126 अरब रुपए के मंसूबे में से वफाकी हुकूमत 89 अरब रुपए दे चुकी। वजारत आबी वसाइल के हुक्काम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी आबी वसाइल में K4 मंसूबे पर ब्रीफिंग। बताया गया कि सिंध हुकूमत के हिस्से की फंडिंग रवां माली साल मिल जाएगी। K4 मंसूबे के लिए पानी केंझर झील से लिया जाएगा। मंसूबे में 84 इंच कुतर की 2 लाइनें बिछाई जा रही हैं। लाइनें बिछाने का 90% काम मुकम्मल कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सदारत में इस्लामाबाद की जस्टिस कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इस्लामाबाद में मॉडल जेल की तामीर से मुताल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मंसूबे में दरपेश मसाइल और मंसूबे की मुतवक्के तकमील की तारीख का ऐलान का इम्कान है। इजलास में जेल इस्लाहात, जेली कमेटी और नेशनल प्रिजन रिफॉर्म एक्शन प्लान पर अमल दरामद का तफसीली जायजा भी लिया जाएगा। मर्दान रुस्तम में मतलूब मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस का दावा है कि 2 मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक मुल्जिमान कत्ल, मुनशियात और चोरी के मुकदमात में मतलूब थे। टंडोला यार के थाना ए सेक्शन की हदूद में 10 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। मानसेरा कड़मंग में पुल के नीचे से खातून की फंदा लगी लाश मिली है। मसला फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ती में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर बयान। कहा, गज़ा में हलाकतें, जबरी नकल मकानी और तबाही नाकाबिल कबूल है। मुस्तकिल जनबंदी, इंसानी इमदाद और गज़ा की फौरी तामीर नौ की जाए। इसराइल, शाम और लेबनान में गैर कानूनी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करें। दुनिया भर में सिर्फ अफगानिस्तान में लड़कियों पर सानवी और आला तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज यूनेस्को और यूनिसेफ का मुश्तरका बयान। कहा, अफगानिस्तान में 22 लाख लड़कियां सेकेंडरी स्कूल की तालीम हासिल करने से महरूम हैं। 93% बच्चे प्राइमरी की तालीम हासिल करने के बाद भी पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। अफगानिस्तान में ख़वातीन, असातिज़ा, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स की अशद ज़रूरत है। अफगान लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो अफगान ख़वातीन का इलाज कौन करेगा? अफगान लड़कियों को कौन पढ़ाएगा? अफगान लड़कियों की तालीम के हुकूक़ की हिफाजत के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की जाए।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की यूएई के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और दीगर शोबों में तजुर्बात से इस्तेफादा करने पर गुफ्तगू की। सदर जरदारी ने दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम से भी मुलाकात की। DP वर्ल्ड की पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, शराकतदारी जारी रखने की यकीन दहानी। भारत में नीपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार। गुज़श्ता 21 दिन की मुकम्मल सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की हिदायत। नीपा से मुतासरा या हाई रिस्क इलाकों से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत। थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयना हर मुसाफिर के लिए लाजमी। क्लियरेंस के बगैर किसी फ़र्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। भारत की रियासत मगरबी बंगाल में कम से कम 5 नीपा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड फी तोला 5.5 लाख रुपए से तजावुज कर गया। फी तोला कीमत में सबसे बड़ा 21,100 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 5,51,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 19,080 रुपए बढ़कर 4,72,961 रुपए हो गई। अमरीका के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में सर्दी की लहर। शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 65 हो गई। मामूलात ज़िंदगी मुतासर। शिकागो में -14 और क्लीवलैंड में दर्जे हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। बुध को अमेरिकन एयरलाइंस की 653 परवाज़ें मनसूख। 1077 ताख़ीर का शिकार रहीं। शदीद सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में 30 साल की सबसे शदीद बर्फबारी से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। मुतासरा इलाकों में खराब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी पूरे हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। हमास ने गजा पट्टी का इंतजाम फ़लस्तीनी कमीशन के हवाले करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। कहा, जंगबंदी के आइंदा मरहले में टेक्नोक्रेट कमीशन के अमल को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। गजा में जंगबंदी माहिदे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। इसराइल के दोबारा जंग मुसल्लत करने, गजा की तामीर नौ में रखना डालने के तमाम बहानों को सबूताज किया जाएगा। राफा क्रॉसिंग को इसराइली मदाखलत के बगैर दोनों सम से खोला जाए। कोलंबिया में 15 अफराद को ले जाने वाला तैयारा मिल गया। कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बच सका। तैयारे के तमाम मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक। हादसे की तहकीकात जारी। तैयारा पहाड़ी इलाके में लापता हुआ था। और दुबई में शहरियों को तकरीबन हर सहूलत ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में मिलने के मंसूबे की मंजूरी। शहरी 20 मिनट में अपनी रोज़मर्रा की 80% ज़रूरी सहूलतें हासिल कर सकेंगे। 20 मिनट पैदल, साइकिल या माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सहूलत तक रसाई होगी। मंसूबे के पायलट मरहले का आगाज़ दुबई के इलाके अलबर्शा 2 से किया जा रहा है। दुबई में बीमारियों की जल्द तशख़ीस का निज़ाम भी नाफिज किया जाएगा। दुबई में एयरपोर्ट के अलावा भी चेक इन सेंटर कायम होंगे। दुबई के मुख्तलिफ मकामात से एयरपोर्ट चेक इन की सहूलत मिलेगी। मुसाफिर चेक इन के बाद एयरपोर्ट पहुँचेंगे और जहाज़ में सवार होंगे।